ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں ایک بہت بڑی اور تاریخی خبر سے۔ پاکستان کی عصری قیادت میں نئی پیش رفت سامنے آ گئی۔ فیصل جی بالکل، صدر مملکت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کی منظوری دے دی ہے، اور اس کے ساتھ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ یہ تقرری 5 سال کے لیے ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا منصب قائم ہوا ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس اہم ذمہ داری پر فائز ہوئے ہیں۔ یقیناً قومی اور دفاع کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک مضبوط قدم یہ ثابت ہوگا، اور وزیر اعظم نے بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہماری بہادر افواج نے دشمن کو شکست دی اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ اور یہی نہیں، ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت پر اعتماد گفتگو کی، کہا کہ سب ٹھیک ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ بالکل، کیا خوب بات ہے کہ جذبہ اعتماد اور آگے بڑھنے کی امید یہی پاکستان کا چہرہ ہے، اور نیک تمنائیں اور دعائیں اور کامیابی کی خواہش کے ساتھ ہم بھی کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام کا آغاز۔ جی ہاں بالکل، ہمارے ساتھ دفاعی درجہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ حارث صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر۔ سب سے پہلے تو سر یور انیشیل ریاکشن آن دس، کل فائنلی نوٹیفیکیشن آ گیا، اینڈ ناؤ سی ڈی ایس والا معاملہ بھی اب کلیئر ہو گیا۔ دیکھیں، بہت ہی خوشائن بات ہے، اٹ واز بیڈلی نیڈیڈ، کیونکہ یہ دیکھا کہ سوچا گیا کہ اس وقت جس طرح کی 5th جنریشن وار ہے اور فاسٹ موونگ بیٹلز ہوتی ہیں، ان میں کوئک ڈیسیژن میکنگ چاہیے، اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو ایک اسپیشل سیٹ اپ چاہیے جو آپریشنل پلاننگ ہو، اور وہ ٹائم جس طریقے سے فوج میں بیٹلز ہیں، چاہے ایئر ہے، لینڈ ہے یا سی ہے، اس کے بعد یہ انفارمیشن وارفیئر ہے، سائبر وارفیئر، اسپیس وارفیئر، لاجسٹکس ہے، اس کے اندر یو نیڈ فاسٹ چینجز جیسے ہم نے دیکھا، اور اس کے لیے ہمیں ایک ایسا ہیڈ کوارٹر چاہیے جہاں پر یونیفائڈ آپریشنل پلاننگ ہو، اور جہاں تینوں سروسز کی پراپر چیزیں آپریشنل پلاننگ ہو، اور تاکہ یہ لڑائی میں اس کو استعمال کیا جا سکے، اور وہیں پر فاسٹ چینجنگ بھی کی جا سکے جو بھی نئی ریکوائرمنٹس ہو۔ اور اس کے لیے بھی چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا عہدہ جو فرسٹ ہے پاکستان میں ہوا ہے، وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، اینڈ ناؤ فیلڈ مارشل عاصم سید عاصم منیر جو ہے وہ چیف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے ہیں، اور یہ فرسٹ ہے پاکستان ہسٹری میں ہوا ہے۔ یہ بہت ہی ضروری تھا، اور کیونکہ دیکھیں پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوتے تھے، دیٹ واز جسٹ اے کوآرڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹر، اس میں ان کے پاس آپریشنل اتھارٹی نہیں ہوتی تھی۔ اب یہاں پر جی ایچ کیو میں یہ ایک پورا سیٹ اپ ایک نیا بن رہا ہے، جس میں آپ نے ٹرمز آف ریفرنس کے حساب سے ایس او پیز نہیں بنائی گئی ہیں، چیزیں ساری سارٹ آؤٹ کیجیے گی، اس انوائرمنٹ کے لیے آپ کا سیٹ اپ کیسا بنتا ہے وہ بنانے کے بعد سوچ سمجھ کے ایس او پیز کے ساتھ اور تمام آئین و قانون کو دیکھتے ہوئے یہ آپ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور اب یہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر بن گئے ہیں، اور یہ بہت خوشائن ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس اہم عہدے کے اوپر بڑے اچھے خوشخلوبی سے کامیاب ہوں، اور ملک کے لیے، اپنی مسلح افواج کے لیے ایک بہت اچھی چینج ہو، اور ہم ایک تمنائیں رکھتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہوں، اور آئندہ کے لیے جو انڈیا میں جو صف ماتم بچا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے، لیکن وہاں کے حالات دیکھ لیں کس طریقے سے انہوں نے فیلڈ مارشل سے عاصم منیر نے اپنے صرف پوری قوم کو اکٹھا کیا، بڑا پروفیشنل طریقے سے پلاننگ کی، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور اتنی بڑی فوج کو شکست پائی دی۔ تو یہ سارے کریڈٹ جاتے ہیں، اس سے پاکستان کا امیج دنیا میں بڑھ گیا، یہ پاکستان بیکم ریجنل سٹیبلائزر، انڈیا بالکل آئسولیٹ ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں مرہون منت ہے فیلڈ مارشل سے عاصم منیر کی پروفیشنل کیپبلٹی، انسپائرنگ کمانڈ، ان کا آپ نے دیکھا ہوگا فیصل، باڈی لینگویج، اگریسو ایٹیٹیوڈ، یہ انسپائرنگ ورڈ یہ ملتا ہے پوری قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے اور فوج کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے۔ اچھا سر، آپ نے جو ہے نا ملک کے حوالے سے تو گفتگو فرمائی، میں چاہوں گا ریجنل جو ہمارے ساتھ پیچھے معاملات رہے، ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ انڈیا کا مس ایڈونچر اور اس کی ابھی بھی خواہشات پوری کی پوری ہیں، حالانکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ کو جو خواہشات پوری کرنی ہیں ہم کر دیتے ہیں، نو وریز۔ تو اس پرسپیکٹو میں یہ عہدہ کتنا اہمیت کا حامل ہے؟
देखें उस लिहाज से भी ये अहम है कि ये अब इसमें आप देखेंगे एयर चीफ, नेवल चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये मिल के एक नई ऑपरेशनल प्लानिंग, जॉइंट ऑपरेशनल प्लानिंग करेंगे ट्राई बैटल सर्विस और ट्राई सर्विसेज के तौर पे, और उसमें तमाम चीज़ों को कैटर किया जाएगा जो कि जो फास्ट मूविंग बैटल में होता है, ताकि उस वक्त आपका टाइम वेस्ट हो। यू ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग, और प्लानिंग करने के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इसका पता हो, ये उनको रिपोर्ट भी करेंगे। और एक और जो मिसकंसेप्शन बार बार आता है वो ये कि शायद सोचा जाता है शायद एयर चीफ और नेवल चीफ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंडर आ जाती है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। देयर आर इंडिपेंडेंट कमांडर, और वो अपनी अपनी फोर्सेस की ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टिंग्स, ऑपरेशनल प्लानिंग हर चीज़ में इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन सिर्फ ऑपरेशनल ट्राइब तीनों सर्विसेज की प्लानिंग के लिए, ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए दे विल बी वर्किंग विद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ताकि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, यूनिफाइड कमांड हो। और इस तरह की जिस तरह की इंडिया हरकतें करते हैं, घटिया हरकतें और नैरो माइंडेड है, कभी थ्रेट कर रहा है, उसके लिए आपकी जॉइंट प्लानिंग ऐसी हो कि वो उसमें आपने हर वक्त इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार हो, एंड यू कैन टेक इकोनॉमी विद मोर कोहेसिव एनवायरनमेंट्स और प्लानिंग के साथ। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी हमारे बॉर्डर्स की सेफ्टी बहुत अहम है, और ऐसे में हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक क़यादत जिसने हमें लीड किया, मार्का हक में हमें कामयाबी से हम किनार कराया, उसका अगले जब तक कि ये सिचुएशन ओवरऑल बेटर नहीं हो जाती, और फिर जिस तरह से इस विन ने हमें स्ट्रेटिजिकली अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान को बढ़तरी दिलाई है, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी भी था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा उन्होंने मिन्नत है फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की, जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की हुई थी और उसके बाद पूरी कौम को यकजा किया, और इतनी बड़ी फौज को आपने 6 से 8 घंटे में घुटना टेकने में मजबूर किया, शिकस्त फाश दी। आई थिंक इट इज अनप्रेसिडेंटेड, बट नोबडी इन द वर्ल्ड कुड इमेजिन कि इस तरीके से होगा। और जिस तरीके से उन्होंने बार बार कहा कि हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम प्रोवोकेशन में नहीं आना चाहता, और पाकिस्तान ने एक ख़ास तौर पर जो क्रेडिट मुझे जाता है कि हमने एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क के तौर पर बिहेव किया। और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि हमारी मुसल्लह फौज प्रोफेशनल और बैटल हार्डन्ड है, एंड वी डोंट कम अंडर प्रोवोकेशन, वी वांट पीस। अभी तो हमने ये डिफेंसिव मैनूवर की थी, हमने ऑफेंसिव एटीट्यूड नहीं की। जो इंडिया ने हमारे पर ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने शुरू कर दिए और ड्रोन्स करने शुरू कर दिए, एयरक्राफ्ट के सिविलियंस को शहीद करना शुरू कर दिए, देन वी वेंट फॉर डिफेंसिव मैनूवर, हमने अपने आप की दिफा किया। अगर हम ये ऑफेंसिव करते हैं, आप यकीन करो फैसल, तो इनका इतना नुकसान होता कि दे कांट इमेजिन। अभी DGI यही आपने फील्ड मार्शल सैयद मुनीर ने PMA कैडेट्स कॉलेज को जब उनको पासिंग आउट करी थी तो एड्रेस करते हुए कहा था कि अगर इंडिया ने दोबारा कोशिश की, कोई मिस एडवेंचर किया, तो हम उनका इतना नुकसान करेंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगे। दीज आर द वर्ड्स। और DGI ने कहा था कि हमने एज ए न्यू नॉर्मल जो हमने एक इस्टेब्लिश किया है कि विल टेक वेरी स्विफ्ट, फास्ट, अग्रेसिव अग्रेशन करेंगे, और इतना ईस्ट में अग्रेसिव लॉस करेंगे, इकोनॉमिक लॉस करेंगे कि उनकी कमर टूट जाएगी, उनको समझ आ जाएगी कि अभी आइंदा के लिए उनको भी ऐसे नहीं करना। 50-60% इससे ज़्यादा मिलिट्री इकोनॉमिक लॉस करेंगे। तो इससे इमेजिन लगा लें कि ये एक इंसान जो जनरल की या सिपा सलार की एक ये कंप्लीट एटीट्यूड देखें और उनका सोच का मेयार देखें, किस तरीके से सोच उनकी अग्रेसिव है, और बॉडी लैंग्वेज देखें, तो ये ट्रुप्स के मोराल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप इंडिया में देखें, सबसे ज़्यादा सुइसाइड रेशियो जो है दुनिया में उनकी है, इसलिए कि उनको ट्रुप्स को अपने कमांडर्स पे ट्रस्ट नहीं है, और फिर कमांडर्स की और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग। हमारे आप देखें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने के साथ उसके बाद मिलिट्री के किस तरीके से कोऑर्डिनेशन थी, किस तरह पूरी कौम इकट्ठी हुई, और जब ये चला रहे थे, ये हमारे अल-फतेह फायर कर रहे थे मिसाइल, तो लोग तालियां बजा रहे थे। दिस स्पीक्स कि उनको अवाम को कितना ट्रस्ट था अपने ट्रुप्स के ऊपर। और यही स्पिरिट आपको वॉर्स में, वो आपको बैटल फील्ड में भी नज़र आता है। आपको याद होगा जब पहलगाम वाक़या हुआ, उसके बाद
चंद एक लोगों के जो कि वहाँ के मकामी लोग थे और जो इंडिया से भी जिनका ताल्लुक था, उनको ये फेक लग रहा था, ये पूरा पहलगाम ड्रामा जो था वो उन्हें फेक लग रहा था। दे कुडंट बिलीव देयर आइज, क्योंकि वो उनको पता है कि वहाँ इंटरनली कितनी चौकियाँ मौजूद है, कितना फौजी वहाँ तैनात रहता है, और ऐसे में किसी का अंदर चले जाना। सो आई थिंक जब आपको पता होता है कि आप हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे तो आपकी स्पिरिट भी आपका साथ नहीं देती। देखिए, इसलिए कि जब आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, आपके पास कोई जज्बा नहीं है, देयर इज नो रीज़न कि आप हैं, और आप एक हक और बातिल में बहुत फ़र्क होता है। तो पाकिस्तान का यही सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आपकी ऑपरेशनल ट्रेनिंग, आपकी उसके बाद आपस में कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आपका जज्बा ईमानी, ये सारी चीज़ें, और फिर आपकी अपनी मशीन के ऊपर अबूर हासिल होना, टेक्नोलॉजी का पता चलना, तो ये सारी चीज़ें बिकम फोर्स मल्टीप्लायर। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। और ये इंडिया में लैकिंग है। आप देखें ना, इतनी बड़ी हमने उनको साइबर वॉरफेयर में, स्पेस वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, फिर हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ हमारे पायलट्स की आप देखें, इधर ग्राउंड फोर्सेस पे आप देखें, कश्मीर में हमने इनका क्या हाल किया। देयर इज अ मार्क डिफरेंस। पाकिस्तान की फौज इज सेकंड टू नन, बिलीव मी। हमारा स्टेचर इस वक्त दुनिया में बहुत हाई है, और ये ऑनेस्टली आई फील कि दिस ऑल क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं, और हम उनके लिए बहुत ही दुआ करते, नेक तमन्नाएं हैं कि उनका टेन्योर 5 साल का पाकिस्तान को और ऊंची उड़ान पे लेके जाए, पाकिस्तान के लिए और मुसल्लह अफवाज को ऊंचा लेके जाए, दुनिया में नाम रोशन हो, और इनको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती ताकि ये पाकिस्तान के लिए कुछ और एक्स्ट्रा कर सके। अच्छा हारिस साहब, वन लास्ट थिंग एंड दैट इज़ के ट्रम्प भी अब तारीफ़ कर रहे हैं, दुनिया मौतरफ़ है आसिम मुनीर साहब की। सबसे अहम बात जो सीरियस नहीं की वो ये कि पाकिस्तान अब यहाँ से ऊंची उड़ान भरेगा। यू नो, पाकिस्तान के साथ इशू ही रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ का। विद दिस नॉट ओनली ब्रिंग्स द हार्मनी एंड द स्टेबलाइजेशन, बल्कि इससे बाहर की दुनिया भी ये अब ये परसीव करेगी कि ओके, नाउ दिस कंट्री इज एन ऑर्डर, इनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सो लेट्स टॉक विद देम, नॉट ओनली टॉक बट लेट्स इन्वेस्ट इन देम एंड ऑल। Faisal, the first time I would say that Pakistan has started behaving like a Islamic nuclear very strong country with better hurdle up. ये दुनिया ने रियलाइज कर लिया है इस लड़ाई के बाद, और ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी इंस्पायरिंग कमांड से, प्रोफेशनल और उसकी एग्जीक्यूशन से ये करके बताया। और जो ट्रुप्स का मोरल हाई हो और वो ट्रुप्स अपने कमांडर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हो, उस फौज और पूरी कौम साथ खड़ी हो, फौज उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता। दैट इज़ व्हाट ही हैज़ प्रूव्ड। और इससे आइंदा के लिए पाकिस्तान की इमेज को इतना बहुत बड़ा एक आपको बूस्ट मिले, और पाकिस्तान को दुनिया रिकग्नाइज करती है। आपके सामने ट्रम्प जो है किस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हैं कि इज़ अ गुड गाय, आई लाइक हिम वेरी दी, ये बातें। और फिर जिस तरीके से उन्होंने वहाँ जाके बात की वाइट हाउस में, सेंटकॉम में, स्टेट डिपार्टमेंट में, BLA को, मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया, तो मेरे ख्याल में फिर आपका स्ट्रेटेजिक मुआहदा हमारा हो गया डिफेंस का, चाहिए सऊदी अरब के साथ और ममालिक करना चाह रहे हैं। आपके सामने ये एयर शो के अंदर आपकी जो दुबई में हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान के थंडर्स ने एक धूम मचा के रख दी, और कितने में कॉन्ट्रैक्ट में चीफ ऑफ स्टाफ के साथ एक हमसाया जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और इंडिया का ये देखें कि इनके बुरे दिन वैसे ही आए हुए, एक और तेज़ जहाज़ जो गिरा इनका, दुनिया ये आप अपने इंडिजिनस जहाज़ लेके जाते हैं, बनाते हैं ताकि वहाँ पर इसकी मार्केटिंग करें और आपको ऑर्डर मिले। इनके ऑर्डर जो मिले हुए थे वो कैंसिल हो गए हैं। दिस इज़ अ मार्क डिफरेंस। और हमारे हर एक जाके MOU साइन कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए उन्होंने, ऑर्डर दे दिए। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड इंडियन आर्मी, ये फ़र्क है। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड वन मोर टाइम आपके साथ बात करके भी, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा भी हटा जिनके बारे में क्लैरिटी की आवाम को ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।